आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कठुआ बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक हीरानगर सेक्टर से 2 जिंदा मोर्टार शेल हुए बरामद। पुलिस और बीएसएफ ने अपनी तहवील में लेकर इन्हें किया नकारा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर में निकाले जा रहे हैं सीरत जलूस। हजारों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा कर रही है शिरकत। तारीखी दरगाह हजरत बल में मुए मुबारक के कराए गए दीदार। हजारों की तादाद में लोगों ने नम आंखों से की मगफिरत की दुआएं। और आज मनाया जा रहा है आलमी यौम हार्ट। उजाला हस्पताल की जानिब से वाकथन का किया गया इनाकात। बढ़ते हार्ट अटैक से बचने के लिए पैदा की गई बेदारी। अब खबरें तफसील से। खित्ता जम्मू में आज जिला कठुआ में बैनुल-अक़वामी सरहद के नज़दीक साथ लगते हीरानगर सेक्टर से 2 जिंदा मोर्टार शेल बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये मोर्टार एक किसान को उस वक्त खेत से बरामद हुए जब वो अपने खेत में हल जोतने जा रहा था, जिसके बाद उसने इसकी पुलिस और बीएसएफ को इत्तला दी, जिन्होंने बाद अज़ां मोर्टार को अपने तहवील में लेकर नकारा बना दिया। श्रीनगर की तारीखी हजरत बल दरगाह में रात भर शबेदारी के बाद आज सुबह वहां मुए मुबारक के दीदार कराए गए, जिसके दीदार के लिए वहां हजारों की तादाद में अफराद मौजूद थे, जिन्होंने नम आंखों से अपने और पूरे अहले इस्लाम के लिए खसूसी दुआएं की हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात कश्मीर को ईमान और अकीदत से मनव्वर कर रही हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पूरी वादी कश्मीर में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। इन तकरीबात का मरकज़ी नुक्ता श्रीनगर में दरगाह हजरत बल है। यहाँ वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद दिन भर जमा हुए लोगों की बगैर किसी रुकावट के शिरकत को यकीनी बनाने के लिए हुक्काम की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे।
عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بارہمولہ ضلع میں درگاہ عالیہ میں رات بھر شبیداری کی گئی اور خصوصی دعائیں کی گئیں، نوافل اور ذکر و اذکار کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنی سچی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ بعد ازاں وہاں آج ایک سیرت جلوس بھی نکالا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ لوگوں نے وہاں انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظاموں کی بھی تعریف کی ہے۔ القرآن، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ربیع الاول اس وجہ سے فضیلت کا حامل ہے کہ اس میں صاحب القرآن آئے ہیں۔ جب صاحب القرآن آئے تب قرآن آیا، تو اس لحاظ سے ربیع الاول جو ہے آج ہماری عید ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا اور یہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قسم صدر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہر روز عطا کرتا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی انسانیت کو عطا کرتا ہے۔ روشنی کی نعمت ہے، ہوا کی نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے، ہر ایک نعمت ہے، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان یا نہیں جتلایا ہے، لیکن یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود، جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، پورے مومنین کو، پورے ان کو جو یہ ہے یہ اس کا منت اور ایک احسان رکھا ہے اللہ نے کہ میں نے یہ نعمت بھیجی۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری محبت اپنے اولاد، اپنے والدین اور پورے لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہاں آئے ہیں، عید میلاد ہے، یہاں پر موئے پاک ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے جد خواجہ ازباب نے 1 لاکھ روپے دے کر آج سے 150 سال پہلے میاں لال دین سے یہ حاصل کیے، ہدیہ ان کو دیا، اور اس کے بعد عوام کے لیے اس کو، عوام کو زیارت کے لیے اس کو رکھا۔ ازبابا ٹرسٹ اس وقت بھی ہے جس کے مشتاق صاحب صدر ہیں، اور فاروق صاحب وغیرہ جو ہیں وہ سیکریٹری ہیں، اور اس کا اس زیارت کا انتظام ہم اس کے کہتے ہیں۔ یہ بھی بتانے کی بات ہے کہ ہمارے پورے خاندان نے جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے در رسول پر ہدیتاً، تحفتاً اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ہمارے آبا اجداد نے، ہمارے والدین نے، انہوں نے پیش کیا، اور ہم نے اس زیارت سے کبھی ایک پیسہ یا 1 روپے بھی اپنی ذات مصرف میں نہیں لایا۔ جو کچھ یہاں پر یہاں پر ہمارا دیوان خانہ ہوا کرتا تھا اس کو ہم نے زیارت میں تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے اوپر والے منزل میں زیارت ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر جامع مبارک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زیارت جو ہے وہ ہمارے لیے باعث شادمانی ہے، باعث مسرت ہے۔ اور عید میلاد کے موقع پر یا معراج کے موقع پر جب یہاں زیارت ہوتی ہے تو مومنین کے دل شاد ہوتے ہیں، معتقدین کے دل جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ قیامت کے روز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، یہ جو اور اسی پر ہمارا آسرا ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، وہی ہماری امید ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بانڈی پورہ کے شاہ جیلان پبلک اسکول نیٹ کھائی میں بھی سالانہ سیرت النبی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کی صدارت شیخ الحدیث مفتی مظفر حسین قاسمی نے کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء اکرام نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اسی طرح اس کانفرنس میں 22 تعلیمی اداروں کے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ The Quran and Sunnah are the basis of our religion. The holy lifestyle بندے کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم رسول، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم رسول، غبار رفو جس نے بخشا فروغ وادی سینہ،
आज जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर, जिसका उन्वान रहता है सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनुअल नात एंड स्पीच कंपटीशन, जो हमने पिछले साल शुरू किया था यहाँ पर, खाली ये देखने के लिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कितना टैलेंट रहता है, उस टैलेंट को आगे लाने के लिए और उनकी अप्रिसिएशन करने के लिए। इस साल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पर कम्पीट करने के लिए एप्लीकेशंस दिए थे, वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला था, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल था और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। टोटल इन 3 डिस्ट्रिक्ट से 22 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और मोर देन 60 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फंक्शन बहुत ही अच्छी रही, एप्रिसिएशन हुई हर किसी एरिया से। यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब जो हमारे थे शाहगुन के, डॉक्टर अली मोहम्मद निश्तर साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पर मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन कासमी साहब जो शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम सोपुर से, उन्होंने भी तशरीफ़ लाया था। शेखुस्तानी मुफ्ती बशीर अहमद कासमी साहब, उन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाया था। और यहाँ पर मुफ्ती मुश्ताक साहब थे और मुफ्ती अब्दुल रहमान जो जामिया मस्जिद पट्टन के इमाम व खतीब हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाया था। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों की शिरकत और लड़कों का टैलेंट देख के बहुत ही मसरत हुई। अनंतनाग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है और बीजबिहाड़ा में मुस्लिम बरादरी ने आज बरोज़े जुम्मा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौके की मुनासबत से एक मजहबी जुलूस निकाला, जिसमें काबिल एहतराम मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत का जश्न मनाया है। बीजबिहाड़ा में बाबा नसीबुद्दीन गाजी से जुलूस का आगाज़ हुआ। रंगारंग जुलूस में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की बड़ी तादाद ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की है। जिक्र को बहुत बुलंद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी घरों में पैदा हुए, इस बात पर भी हम शुक्र अदा करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, करोड़ों लाखों सलाम हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, जिनका आज यौम विलादत मनाए जा रहे हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जनूबी ज़िले अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाक़े में जल से जुलूस बरामद हुए हैं। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा और मेन अनंतनाग कस्बे से सबसे बड़े जुलूस बरामद हुए हैं। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। वादी कश्मीर के पहले कारपोरेट उजाला साइंगस कश्मीर सुपर स्पेशलिटी की जानिब से एक वाकथन रैली का इनेकाद किया गया है। ये रैली नेहरू पार्क से शुरू होकर प्रताप पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। ये रैली यौम हार्ट के सिलसिले में निकाली गई, जिसमें बढ़ते हार्ट अटैक यानी दिल के दौरों के वाक़ात के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना था और इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए तौर तरीक़ों की भी जानकारी आम की गई है। जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो, तो इसके लिए हमें एक कलेक्टिव अप्रोच जो है वो लेना पड़ेगा। तो हमारा हमेशा रहता है कि सोसाइटी के प्रति जो हमारा है कि अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों तक हम अपनी जो है जो अवेयरनेस उन तक पहुंचाएं कि कैसे वो अपने जो है आपका ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो ये बेहतर है कि बीमारी से पहले ही जो है हम ऐसी चीज़ें करें कि हम बीमार ना हों, क्योंकि बीमारी के बाद बहुत सारे फिर जो है चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तो फिर एक फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो बिफोर दैट कि वो नौबत आ जाए, उससे पहले हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। मैं डॉक्टर परवेज़ सोफ़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नस कश्मीर। का मकसद यही है, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। वर्ल्ड हार्ट डे इसीलिए हर साल पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर हार्ट डिजीज़ के रिलेटेड किया जाए। आप सब लोग जानते हैं कि दिल की बीमारियां नंबर 1 किलर है। दिल की बीमारियों की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो इसको जानना किससे होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले, वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास पर कश्मीरी पॉपुलेशन के लिए अभी आप देख रहे हैं सर्दियाँ शुरू होने वाली है। अभी सर्दियाँ शुरू होंगी तो दिल पे जो लोड पड़ेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज़ आपके नोटिस में आएंगे। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले, ऐसा ना कि हार्ट अटैक करके हॉस्पिटल आना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में आइडेंटिफाई करें कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, क्या आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, क्या आपको मोटापे की वजह से चर्बी खून में तो नहीं हो रही है। तो ये रिस्क फैक्टर अगर हम पहले ही पहचान लें और उसके बाद सही जांच कर ले तो हम बहुत सारी चीज़ें
बचा सकें। पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट की जानिब से आज जम्मू में मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 70 बरसों से अपने मुतालबात को हल कराने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनसे किसी ने मुकम्मल इंसाफ नहीं किया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से उनके लिए मंजूर किए गए पैकेज का भी उन्हें अभी तक पूरा पैसा नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्होंने हदबंदी कमीशन की जानिब से उनके लिए मुख्तस की गई एक सीट की भी मज़म्मत की है और कहा है कि उनकी 10 से 15 लाख की आबादी के लिए महज एक सीट नाकाफ़ी है। मैं जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट, हेडेड बाई कैप्टन जुदवीर सिंह। पिछले 70 साल से ये हमारे रेफ्यूजी दर बदर खज्जल हो रहे हैं, किसी ने 70 साल सुध नहीं ली। माननीय मोदी जी ने थोड़ा गौर की इन पर और 5.5 लाख रुपया हमें दिया, वो भी अभी 80% पैसा बनता है, 20% अभी बकाया है। इसके अलावा जेपीसी ने जो रिकमेंड किया था कि इनको 30 लाख रुपया दिया जाए, 24.5 लाख रुपया हमारा अभी बकाया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम चाहते हैं कि एक ही किस्त में सब लोगों को पैसा दिया जाए ताकि लोग अपना कुछ काम काज कर सकें। ये गरीब लोग हैं, दर बदर खज्जल हो रहे हैं, कोई किराए पर है, कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है, ज़मीनें इनके पास नहीं हैं। अब जो गवर्नमेंट को घोषणा कर रही है कि इनको ज़मीन दी जाए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले ज़मीन इन रेफ्यूजियों को दी जाए जो सबसे बेचारे निचले दर पर चल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसीजन किया था, हमारे जहाँ एक कमेटी आई थी जिन्हें डिलिमिटेशन कमेटी, उन्होंने कहा था शीटों के लिए एक शीट हमारी जो है रिकमेंड की जा रही है, जबकि रेफ्यूजी जो हैं 10 से 15 लाख रेफ्यूजी है जो है पीओजे के का। एक शीट किस किस को बांटेंगे? हर बार हमसे वोट तो लिए जाते हैं, हम दूसरे लोगों को वोट दे देते हैं, हमारी कोई सुध अंदर लेता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम 8 सीटें जो है वो लोगों को मिलें। जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं उनको मालकाना हक नहीं है, उन पर भी कोई दूसरे लोग नज़र रख रहे हैं, वो भी दर बदर घूम रहे हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिले, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिले, 24.5 लाख रुपया जो बकाया है उन्हें दे दिया जाए। धन्यवाद। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में खून अतिया कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में बीजेपी नौजवान कारकुनान ने खून अतिया किया है। इस दौरान वहाँ डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के सदर चांद जी भट्ट भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी दी है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम आइंदा मज़ीद 15 दिनों तक जारी रखे जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है उसके अंतर्गत हमारा युवा मोर्चा, डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट का युवा मोर्चा यहाँ पर अपना ब्लड दे रहा है ताकि लोगों के काम आ जाए। और साथ में और भी कार्यक्रम हमारे होने वाला है, क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा हमारा कम से कम 15 दिन चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आगे के हिसाब से जितने भी भारत के जितने भी युवा हैं उनसे आग्रह किया गया कि आप अपना ब्लड दे दो ताकि लोगों के काम आ जाए। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा और भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम एससी बस्ती यानी कि शेड्यूल कास्ट बस्ती में भी जा रहे हैं, जहां पर लोगों के साथ हम बैठकर खाना खाएंगे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो इस सेवा पखवाड़ा में हम करने जा रहे हैं। रिशमूल साहब मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं और सिख बरादरी के लिए भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। कश्मीरी पंडित हर साल अनंत चतुर्दशी के इख्तिताम के बाद अनंतनाग में हज़रत बाबा हैदर ऋषि रिशमूल साहब के खानकाह पर जाते हैं और सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर हाज़िरी पेश करते हैं। कश्मीरी पंडित बरादरी का कहना है कि वली की खानकाह तमाम मजहबी और बरादरियों की तरफ से बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है और हिजरत से कबल जनूबी कश्मीर के आसपास से खवातीन और मर्द खानकाह पर आते थे और खानकाह के अहाते में बैठकर घंटों तक यहाँ खसूसी दुआएं करते थे। तो इसी हमारी जब भी हम यहाँ अनंतनाग आते हैं तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि यहाँ से हम माथा टेक कर नहीं जाए। पर जब भी हम यहाँ आते, जब भी हम कश्मीर आते हैं, हम पहले यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद हम नागबल जाते हैं, दीवल जाते हैं। आज जो हमारा हवन था यहाँ पर, पिछले 3 दिन से वहाँ पर यहाँ के हमारे भाई लोग वहाँ पर हमारे साथ आए। हम हमारा हाथ बटाए, जो कुछ भी हमें ज़रूरत था उन्होंने हमें पेश किया। इसलिए ये भाईचारा, यही तो हकीकत है, यही हकीकत है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते।
मीरपुरा दुनियावी कंडी मर्ग के लोगों व मकामी औकाफ कमेटी ने आज उस वक्त एहतजाज किया है जब दूसरे गांव के लोगों ने मीरपुरा में आकर औकाफ कमेटी की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की, जबकि मीरपुरा औकाफ कमेटी व लोगों की तरफ से मौजूदा ज़मीन पर तामीराती काम जारी रखा है और दूसरे गाँव के लोगों ने काम को रोक दिया है। उन्होंने अब डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और SDM नूराबाद से पुरजोर गुजारिश की है कि वो इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें और इस मामले को अव्वलिन तरजीहात में हल किया जाए। बात नहीं तो SDM साहबस निश DC साहबस निश दबस अस करते इंसाफ प्लीज सबिल अल्लाह बुझ त अचम केन जनान मरद अत लगित अचन बी का कार बस यो योत कार चस अच लागन कम यम यवन हमल कर डांडा न तोड़े जनान मरद दिवन वन सा ऐसे करो तो करो क्या नत सही जिंदगी ते अस गो यूत कर वनिस न छन अस करा ये वुचमुत के जिस मा वुचन वनिस न के युस यु कैसे मुतुलना फी सबिल अल्लाह करतन अस इंसाफ बस बाकी नहीं सर मे अली मोहम्मद मीर रोजान मीर महला दानवकंडी मार्ग ये मस्जिद जामा मस्जिद अवलिन दानवकंडी मार्ग यम जामिया मज वनस तान द्राम 14 जामिया यम वस सारी रुजू ये जामिया सत बहरहाल पॉपुलेशन बढ़े जगह जगह बने जामिया या हालात गई थी पॉपुलेशन तो बढ़े बहरहाल तुम वनस मौजूद हालात पता कि क्या बच कुन गसान ये महल वनस औकाफ कमेटी यमो दपो सब बनाओ इधर दरसगाह ताकि बचन दिमो इस्लामी तालीम बदकस्मती सान युथ यमो काम कर शुरू बे महल पे दूर बेशक तिमो वक्त तौर मस्जिद शरीफस तमिज मावनत कर्मुत मगर तम दपान यह हसा जन औकाफ कमेटी सन तमाम डॉक्यूमेंट दिवन मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने